Good morning, students. Now, today we will discuss the looping statement. What is the looping? Introduction to loops. While programming, you may want to repeat the execution of a certain set of statement multiple times. ठीक कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स multiple times. This can be done using loops, which is possible through the looping. A loop is used to repeat the execution of a group of statements many times. Statements that enable us to create loops are known as looping statements. We will learn the following looping statement in Q basic. The first one, for next and do loop, and while when and do loop. ठीक है, so first we will discuss the for next loop. For next statement for looping. The for next statement is used when you want a group of statement to be executed a specific number of times. The general form of for next statement is given below. For counter, for counter के यहाँ पे वेरिएबल है. फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू या ब्रैकेट में स्टेप वैल्यू. The loop body comprising a set of statement to be executed. Next counter. The statement when written between the for next from the body of the loop. The above mentioned for next statement. Number 1. Counter is a numeric variable that controls the loops and hence is also called the control of the index variable. Its value change every time the loop body gets executed. Number 2. Step value is the value by which the counter variable is incremented or decremented every time the loop body is executed. स्टेप वैल्यू में क्या, स्टेप वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अगर लूप जिसे मान लीजिए हमको 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करानी है तो 1 से लेकर 10 तक, तो हमारी क्या होगा, +1 स्टेप +1. और या अगर -10 से लेकर 1 तक करानी है तो स्टेप -1. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ड ऑन फॉर नेक्स्ट लूप. तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल ए, इनिशियल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल 1, फाइनल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल 3, स्टेप वैल्यू. अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल वेरिएबल फॉर ए हमारा क्या है, वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल. इनिशियल वैल्यू 1 2 3, फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, 3. इसको समझिएगा. प्रिंट हेलो नेक्स्ट ए, तो हेलो हमारा कितने बार प्रिंट होगा, 3 टाइम्स. बॉडी ऑफ द लूप में क्या है, हेलो है हमारा. तो 1 2 3 मतलब हमारा जो नेक्स्ट ए हमारा रिपीट होगा, जो लूप हमारा चलेगा 3 टाइम चलेगा, और हेलो हमारा कितने टाइम प्रिंट होगा, 3 टाइम प्रिंट होगा. ओके. नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द एबव फॉर नेक्स्ट लूप. 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू. लूप बॉडी एग्जीक्यूटेड. द वैल्यू ए इज इंक्रीमेंटेड टू 2, hello. 2 is less than equals to 3, true. The loop body executed the above. The value of a is incremented to 3, hello hello. 3 is less than equals to 3. Loop body executed the value of a is incremented to 4, hello hello hello. ये हमारी कंडीशंस होती है, हमारी लूप हमारा एंड हो जाएगा. तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो हेलो 3 टाइम्स आएगा. Thus the loop runs 3 times. The string hello appears 3 times on the output screen when the loop in the statement written after the loop are executed. Consider the following example. ठीक है. अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है. फॉर x इक्वल्स टू 1 to 5 प्रिंट x नेक्स्ट x. मतलब x इक्वल्स टू क्या है, 1 to 5, मतलब ये हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. और x की जगह पे क्या है, 1 to 5 है, तो हम नेक्स्ट x करेंगे. तो प्रिंट द लूप गेट गो टू ओवर. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 to 5. ये देखिए 1 2 3 4 5. ओके. यूजिंग द स्टेप वैल्यू. अब हम स्टेप वैल्यू की बात करते हैं. You can give the step value to specify the value by which the control variable should change in the following program. The control variable is changed by 2 every time the body of the loop gets executed. For x equals to 1 to 10, step 2. इसे 2 का टेबल नहीं पढ़ते हो, 2 1 2 2 2 4. उसी तरीके से क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा क्या होगा, हर 2 के बाद में हमारा लूप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा. तो प्रिंट x नेक्स्ट x, तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए 1 फिर 3
फिर 5, फिर 7, फिर 9। अगर यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 2 to 10 होती तो 2 आता, उसके बाद में 4 आता, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरीके से हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता। नेक्स्ट, यू कैन आल्सो असाइन अ नेगेटिव नंबर एज अ स्टेप वैल्यू। मैंने अभी बताया था कि जब आप माइनस की वैल्यू लोगे तो 10 टू, अगर 1 करोगे तो कितना आएगा, पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। ये हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। अब अगर फॉर 1 to 2 स्टेप 0.25 प्रिंट आई तो क्या होगा, हमारा 0.25 हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा लूप। कब तक, जब तक हमारा 2 नहीं आ जाता है। तो 1, फिर 1.25, 1.5, 1.75 और 2। ओके, let us consider some more examples for next loop. To add the natural numbers from 1 to 20, अब क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, them to add numbers 1 to 20। ठीक है, तो CLS का यूज क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। एक हमने वेरिएबल ले लिया सम, इसमें क्या डाल दिया, 0। ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 1 to 20, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई में हमारा कितना है, 1 to 20 है। तो जितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये सम में हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट एक होती रहेगी, सम प्लस 1 आई में हमारा वैल्यू चलती रहेगी और नेक्स्ट आई। तो प्रिंट हम क्या करा देंगे, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इक्वल टू, यहाँ पे हमने सम को प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इक्वल टू 210। ओके, इसको आप क्यू बेसिक अपने सिस्टम में जिसके पास है वो इंस्टॉल कर ले और उसको प्रोग्राम को रन करा के देखें। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम चलेंगे। टू ऐड ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, अब क्या करना है, सारे इवन नंबर्स को ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपल सा CLS सम इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई भी सम की जगह पे कुछ भी A B C कुछ भी लेना चाहो वेरिएबल आप ले सकते हो। और फॉर आई की जगह पे, ये भी एक वेरिएबल है तो आई की जगह पे जो भी आप लेना चाहो ले लो। 2 से 20 स्टेप 2, सम इक्वल टू सम प्लस आई, नेक्स्ट आई, प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, ये दे दिया और सम को प्रिंट करा दिया। आउटपुट हमको क्या मिल गया, 110। ओके, इसी तरीके से टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, अब यूजर के द्वारा जो टेबल एंटर की जाएगी उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एंटर अ नंबर, हमने एक इनपुट दे दिया एंटर अ नंबर, तो इनपुट क्या दिया, ए। कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर दो। फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है, कितनी बार चलेगा ये, 10 बार। प्रिंट ए एक्स कॉमा आई इक्वल्स टू ए इंटू आई, नेक्स्ट आई। तो जो आपसे आउटपुट मांगेगा इंटर अ नंबर, अपने आपने दे दिया 8, तो 8 का टेबल प्रिंट करा देगा। अगर आप यहाँ पे 7 दोगे तो 7 का टेबल प्रिंट कराएगा। जो भी आप दोगे वो नंबर आपको प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, अब बात ये हमारा फॉर नेक्स्ट लूप हो गया। इसी तरीके से डू लूप की बात करते हैं। ठीक है, डू लूप में डू वाइल लूप और डू अनटिल लूप दो मिलेंगे। तो यूजिंग में नॉट ऑलवेज नो द नंबर ऑफ टाइम्स अ लूप हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, execution of the statements may depend upon a condition. In such a situation, the loop of a do loop is preferred over a for next loop. There are two variations of the do loop, do while loop and do until loop. The first one, do while loop. The do while loop is executed as long as the specified condition is true. The general form of do while loop is do while condition. The loop body comprising a set of statements to be executed. Loop, the statement written between the do while and loop from the body of the loop. Let us look at an example of the loop. A is equals to 1. Do while a is less than 3. Print a is equals to a plus 1. Loop. अब यहाँ पे a हमारा क्या है, कब तक ये एग्जीक्यूट होगा, जब तक a की वैल्यू a इज लेस देन 3, a की वैल्यू 3 से कब तक हमारी कम रहेगी। तो कम कहाँ तक रहेगी, 1 और 2 को प्रिंट करा देगा क्योंकि एज लेस देन 3 है। ओके, अब ये देखिए, पहला हमारा कंडीशन चला तो 1 प्रिंट हुआ, दूसरा कंडीशन चला जिसमें 1 और 2 प्रिंट हुआ, लेकिन जब 3 इज लेस देन 3 आया तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, द लूप
above loop is executed as long as the value of a is less than 3. The condition in the do while loop is not true. The loop is not executed at all. Consider the following example: x is equals to 10. Do while x is less than 10. Print x loop. In this case, the condition x is less than 10 is not true, and hence the loop body is not executed. Let us look at the few more example do while loop. To display odd numbers less than 30. ठीक है, क्या करना है? ऑड नंबर्स लेस देन 30. तो एक्स CLS एक्स इक्वल्स टू 1 डू वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 30. एक्स की वैल्यू कितनी है? लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो जाए या तो इक्वल हो जाए, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 30 के बराबर होगी. प्रिंट एक्स एक्स प्लस 2 लूप. आउटपुट क्या आएगा? देखिए आउटपुट 1 2 3 1 3 5, मतलब 2 का यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये सब चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 29 तक जाएगा. ओके. ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल, टू ऐड नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर एज लॉन्ग एज द यूजर वांट टू. अब यूजर के द्वारा प्रिंट कराया गया, तो CLS $, इक्वल्स टू y, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 0 असाइन किया. डू वाइल एस वाई, इनपुट एंटर एनी नंबर नम, सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, इनपुट एनी इंटर y टू ऐड मोर नंबर्स. लूप प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स सम. अब यहाँ पे इंटर अ नंबर, नंबर जब दिया आपने 10, तो इंटर y टू ऐड मोर नंबर्स, y इंटर नंबर 20, यस इंटर अनदर नंबर 30, तो इंटर y टू ऐड मोर नंबर्स n, नहीं, द सम ऑफ नंबर्स कितना हो गया? 60 हो गया. अब डू अनटिल लूप की बात करते हैं. अभी तक क्या था, जब कंडीशन फॉल्स होती थी तब हमारा प्रोग्राम क्या होता था? एंड हो जाता था. अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, do until loop is similar to the do while loop. The only difference the two loop is that the do until loop is execution of the loop continuous as long as the continuous is condition is false. अब पहले था, पहला जो हमारा था डू लूप में, वहाँ पे जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती थी